Namaskar and a very good evening, all of you. Please confirm if we are live. How are you guys doing? Good evening, Narsimha. Good evening, Govind. Hi, Astha, Achal, Sakib, Ram. Hello, Ashwini, Rachayita, Sonia, Pratyaksh, Pavan, Neelam, Swapnil, Book Bites, Sonal, Amos, Harold, Anchika, Ritika, Ayush, Rituja, Divyani. मैं ठीक हूँ. आप सब कैसे हैं? हाय वेदांश. हेलो प्रतिभा. All right. Today we are going to talk about a very interesting topic. I think most of us keep talking about it here and there, especially on social media. So this is a good scientific anthropological discussion on the same. We have done an RC on this topic, but the passage differs from what the RC says. So it's going to be an interesting read, and we have a couple of questions in the end for you to ponder upon that you can do as homework. Without wasting any time, let's make some announcements. There are unbelievable discounts going on, and tomorrow is the last day of this discount. Right now, you are getting a 6-month subscription for 20,900 rupees, and you're also getting a 2-month extension free. You can use my code Karishma Live to avail this offer. If you're opting for an iconic plan, it's available for 30,000, and you're getting a 2-month free as well. The Crack the Cat code batch is starting on June 8th, which is already started, so you can join us in this batch as well. Then the CAT SAT or the CAT scholarship admission test is happening on the 18th of June at 12 and 5 p.m. in 2 slots. It's a 30 question 60-minute test wherein you have a chance to win up to 100% scholarship, or you have a chance to win vouchers of Amazon up to 5k. And of course, you can get a subscription for a minimal amount if you score well. This is also a good test for you to see where you stand when you compare to other people. So it's a good test. And this is a snapshot of some of our toppers. The Crack the Cat code batch started on the 8th of June. These are the USPs of the batch. You can go through the same. I would also like to tell you that on Monday, which is 12th of June, Ravi sir and I are coming to the Rajendra Nagar Center of Delhi of an academy. Okay, so in the Rajendra Nagar branch, you can meet us 3 p.m. onwards. The details are given on the Telegram group, and you can come and meet us. You can bring along your resume, and we'll help you analyze your profile. You can come up with your doubts. You can come and meet and greet us. If you have any questions, we'll be happy to help you. We can take a look at your profile. We can take a look at how your preparation is going. You can ask us any questions that you might have. We might help you with the strategy that is for the remaining 4-5 months. And yeah, it's going to be a good chit chat fun session. So you're welcome. Anybody can just walk in. It's at 3 p.m. in the Rajendra Nagar branch of New Delhi. Even if you are not a Plus subscriber, you can still come. Alright, so please come if you are in Delhi NCR. These are the features of the Plus and the Iconic subscription. You can go through the same. Let's start with the article. In 1930, when London Zoo announced its baboon enclosure would be closing down, the story made headlines. For years, Monkey Hill, as it was known, had been the scene of bloody violence and frequent fatalities. अब ये कहता है कि 1930 में लंदन जू ने बबून एनक्लोजर को बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया था. बबून्स आर बेसिकली प्राइमेट्स दैट आर ऑफ द मंकी कैटेगरी, और ये बहुत ज़बरदस्त हेडलाइन हुई थी, और इसको काफ़ी टाइम तक मंकी हिल कहा जाता था. और यहाँ पर बहुत ब्लडी वायलेंस होता था, और आई दिन फ्रीक्वेंटली फेटलिटीज़ होती थी, डेथ्स होती थी. फेटलिटीज़ आर डेथ्स. आई होप एवरीबडी नोज दैट. द US न्यूज़ मैगजीन टाइम रिपोर्टेड ऑन द इंसिडेंट दैट प्रूव्ड टू बी द फाइनल स्ट्रॉ. वजह क्या थी फाइनल फेटलिटी की, क्यों बंद हो रहा था ये सेंटर? जॉर्ज, अ यंग मेंबर ऑफ द बबून कॉलोनी, हैड स्टोलन अ फीमेल बिलोंगिंग टू द किंग, द ओल्डेस्ट द लार्जेस्ट बबून ऑफ मंकी हिल. तो जो लार्जेस्ट ओल्डेस्ट बबून था मंकी हिल का, उसके पास उसकी बंदी थी, मतलब बबून थी, फीमेल बबून,
और जॉर्ज का दिल आ गया इस फीमेल बबून पर और उसने उस बंदी को चुरा लिया। दोनों का आपस में झगड़ा हुआ और अल्टीमेटली उस सीज में बंदी चुराने के बाद जॉर्ज ने बंदी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मतलब लिटरली नहीं, मेरे को थोड़ा सा आफ्ताब वाला केस याद आ गया था, बट एनीवे जॉर्ज एंडेड अप किलिंग हर। तो आप बंदी के पीछे लड़े, फिर आपने बंदी को सीज किया और फिर आपने बंदी को ही उड़ा डाला। इतना वायलेंस हो गया कि फाइनली बबून एनक्लोजर शट डाउन कर दिया गया। मंकी हिल कास्ट अ लॉन्ग शैडो ओवर हाउ एनिमल एक्सपर्ट्स इमेजिन्ड मेल डोमिनेशन। बात ये नहीं है कि क्या हुआ, यहाँ पर एक लार्जर चीज़ एट प्ले है कि मेल डोमिनेशन एनिमल्स में भी हमें देखने को मिलता है और ये कैसे प्ले आउट करता है। इट्स मर्डरस प्राइमेट्स रीइंफोर्स्ड अ पॉपुलर मिथ एट द टाइम दैट ह्यूमंस वर अ नेचुरली पेट्रियार्कल स्पीशीज। तो हमारे जो मर्डरस प्राइमेट्स हैं, बबून्स जैसी हरकतें कर रहे हैं, जो बंदी को मार रहे हैं बंदी के पीछे, उन्होंने इस बात को रीइंफोर्स करा है, इस पॉपुलर मिथ को, कि ह्यूमंस जो है वो नेचुरली पेट्रियार्कल हैं। क्योंकि हमारे भाई लोग भी यही कर रहे हैं, बबून भाई यही कर रहे हैं, तो ह्यूमन भाई होमोसेपियन भी यही करेंगे कि हम नेचुरली पेट्रियार्कल हैं, पुरुष प्रधान। पेट्री प्लस आर्की, पेट्र फादर, आर्की गवर्नमेंट या सोसाइटी या रूल। For zoo visitors, it felt as though they might be peering into our evolutionary past, one in which naturally violent males had always victimized females. मैंने आपको आरसी में भी पढ़ाया था प्लस क्लास में कि एक थ्योरी कहती है कि मेल्स नेचुरली एवोल्यूशन की वजह से ही वायलेंट रहते हैं और उन्होंने हमेशा वीकर फीमेल्स को विक्टिमाइज़ किया है, क्योंकि फीमेल्स में इतनी बॉडी स्ट्रेंथ ही नहीं रहती कि वो पलट कर मार सकें। तो नेचुरली वायलेंट रहते हैं मेल्स और उन्होंने हमेशा से मेल वायलेंस प्रैक्टिस करा है। इन ट्रूथ मंकी हिल वॉज नॉर्मल। तो ये जो जू विजिटर्स थे इनके लिए तो ये जो एवोल्यूशनरी पास्ट वाली थ्योरी थी ये रीइंफोर्स हो गई कि देखो बबून भाई साहब ऐसा कर रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, तो फिर चलो क्या कहते हैं इनका बदला ले लेते हैं। बट मंकी हिल नॉर्मल नहीं था, इनका जो सोशल एनवायरनमेंट था वो वॉर्प्ड था। वॉर्प्ड था मतलब डिस्टॉर्टेड था, ठीक। इनका डिस्टॉर्टेड सोशल एनवायरनमेंट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैनी मेल मंकीज बीइंग प्लेस्ड विद ट्रैजिकली टू फ्यू फीमेल्स। तो इनका जो डिस्टॉर्टेड सोशल एनवायरनमेंट था वो किस लिए था, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मेल मंकीज थे और बहुत ही कम फीमेल्स थी। इसीलिए तो दो बंदे एक ही बंदी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि बंदियों का शॉर्टेज है। और बंदियों का शॉर्टेज होना लाजमी है क्योंकि बंदी किसी को चाहिए ही नहीं, सबको बंदा चाहिए होता है। बंदी तो जब चाहिए होती है जब बंदे जवान हो जाते हैं। काफ़ी सैड स्टोरी है। Only decades later, with the discovery that one of our closest genetic primate relatives, bonobo apes, are matriarchal, have biologists accepted that patriarchy in our own species probably can't be explained by nature alone. बबून्स को देखकर 1930 में हम कह रहे थे हम नेचुरली पेट्रियार्कल हैं, हमारे मर्दों को आदत होती है जवानी में वायलेंस करने की। लेकिन बहुत साल बाद जब हमने देखा कि हमारे दूसरे भाई लोग यानी बोनोबो एप्स मेट्रियार्कल हैं और वहाँ पर औरतों की मर्जी चलती है, जबकि वहाँ के मेल्स बड़े होते हैं साइज़ में, उसके बावजूद फीमेल्स ओवर पावरिंग है, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, फिर शायद पेट्रियार्की को हम नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मामला कुछ और है, ठीक है कि नहीं। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बीन ट्रैवलिंग द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन पेट्रियार्की फॉर माई बुक द पेट्रियार्क्स। कुछ लड़कों का खून इतना गर्म है कि वो टीचर को भी नहीं बख्शते हैं, टीचर पे आके अपना गुस्सा निकालते हैं। हाँ, आओ बेटा प्लस क्लास में शाम को बात करते हैं। चलो, ओवर द पास्ट फ्यू years I've been traveling the world to understand the origins of human patriarchy. I learned that while there are many myths and misconceptions about how men came to have as much power as they do, the true history also offers insights into how we might finally achieve gender equality. कि भाई इसने कहा ऑथर ने कि मैं अपनी बुक पे काम कर रही थी द पेट्रियार्क्स पर, और मैंने सीखा कि बहुत सारे मिथ्स हैं दुनिया में और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि मेन को जितना पावर आज है वो इतना पावर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और हिस्ट्री जो है वो थोड़े हमको इंसाइट्स देती है और हमको थोड़ा सिखाती है कि हम कैसे फाइनली जेंडर इक्वालिटी अचीव कर सकते हैं। फॉर स्टार्टर्स, ह्यूमन वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आवरसेल्व्स एक्चुअली डोंट हैव मेनी पैरेलल्स इन द एनिमल किंगडम। अगर आप अपने आप को एनिमल किंगडम से कंपेयर कर रहे हैं, कजन्स वजन से कंपेयर कर रहे हैं हमारे एनिमल कजन्स से, तो थोड़ा दिक्कत का काम है, क्योंकि हमारे पैरेलल्स आपको एनिमल किंगडम में मिलेंगे नहीं। हमारा खुद को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। पेट्रियार्की का मतलब होता है रूल ऑफ द फादर। ये दिखाता है कि मेल पावर हैज़ लॉन्ग बिन बिलीव टू स्टार्ट इन द फैमिली विद मेन एज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, पासिंग पावर फ्रॉम फादर्स टू सन्स। बट अक्रॉस द प्राइमेट वर्ल्ड दिस इज़ वैनिशिंगली रेयर। आपको प्राइमेट्स में देखने को नहीं मिलता है कि पिताजी जाके बेटे को जायदाद सौंप देते हैं, पावर सौंप देते हैं,
और फीमेल्स को कोई पूछ नहीं रहा है. दिस इज़ मोर ऑफ अ human thing that happens. If you look at primates, it is rare, it is vanishing. Okay. As anthropologist Melissa Thompson at the University of New Mexico has observed, intergenerational family relationships in primates are consistently organized through mothers, not fathers. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व करा है, थॉम्सन में मेलिसा थॉम्सन इनका नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको में, कि इंटरजनरेशनल फैमिली रिलेशनशिप्स जो है प्राइमेट्स में वो मदर्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, फादर्स के थ्रू नहीं. तो आप एनिमल्स से पैरेलल ड्रॉ करना बंद कर दीजिए. आपको नेचर में इस बात का जवाब नहीं मिलेगा कि ह्यूमंस कब और कैसे और क्यों पेट्रियार्कल हो गए. ह्यूमंस में भी पेट्रियार्की यूनिवर्सल नहीं है. सुन लो गांव वालों कान खोल के, पेट्रियार्की इज़ नॉट यूनिवर्सल अमंग ह्यूमंस. Anthropologists have identified at least 160 matrilineal societies across the Americas, Africa and Asia in which people are seen to belong to their mother's families over generation. Inheritance passes from mother to daughter like in Meghalaya in India. In some of these communities, goddesses are worshipped and people will stay in their maternal homes throughout their lives. लोग माँ के घर में रहते हैं, माँ बेटी को पावर और पैसा ट्रांसफ़र करती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है, पूजा भी गॉडेस की होती है, डिसीजंस भी फीमेल्स के चलते हैं. तो आपको 160 प्लस ऐसी सोसाइटीज़ मिलेंगी अक्रॉस द ग्लोब जो मेट्रिलिनियल है. मोजो ऑफ मैन इन साउथ वेस्टर्न चाइना फॉर इंस्टेंस माइट हेल्प रेज देयर सिस्टर्स चिल्ड्रन रादर दैन देयर ओन. अपने बच्चे पालने के बजाय बहन के बच्चे पालने में मदद करते हैं. तो बुआ का रोल कम है, मामा का रोल ज़्यादा है वहाँ पर. बुआएं तो खैर हमारे कंट्री में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही हैं, बट एनीवे. ऑफन इन मेट्रिलिनियल कम्युनिटीज़ पावर एंड इन्फ्लुएंस आर शेयर्ड बिटवीन मैन एंड विमेन. अब मेट्रिलिनियल कम्युनिटी में आप देखोगे कि विमेन मैन को ओवर पावर नहीं करती हैं. पावर बटा हुआ होता है, शेयर्ड होता है बिटवीन विमेन एंड मैन. हाँ चले जाना साकिब, मुझे पता है तुम बहुत खुश हो. क्या बात है, बड़ी डीपी लगा कर आए हो तुम, है कि नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. इन मेट्रिलिनियल असांते कम्युनिटीज इन घाना लीडरशिप इज डिवाइडेड बिटवीन द क्वीन मदर एंड अ मेल चीफ हु शी हेल्प्स टू सिलेक्ट. तो इन मेट्रिलिनियल असांते कम्युनिटीज, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, मोसुओ मेन इन साउथ वेस्टर्न चाइना. अब घाना की बात हो रही है कि घाना में असांते कम्युनिटी है जिसमें लीडरशिप डिवाइडेड है क्वीन मदर के बीच में और मेल चीफ के बीच में, और मेल चीफ वही सिलेक्ट करवाती है. In 1900, the Asante ruler Nana या Asantewa led her army in rebellion against British colonial rule. तो ये असांते का रूलर था जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करी थी क्वीन की आर्मी लीड कर 1900 में. तो आप देख रहे हैं कितना सामंजस्य बिठाकर औरतें और मर्द मिलजुल कर काम कर रहे हैं 1900 में. यहाँ लोग 2023 में परेशान हो रहे हैं. थेरेपिस्ट के पास जाके बोलते हैं हमारी बीवी घर का काम कम करती है और हमारी मम्मी बहुत काम करती थी तो हमें हमारी बीवी पसंद नहीं है. बट एनीवे, the further we dive into prehistory, the more varied forms of social organization we see. At the 9,000-year-old site of Catalhoyuk in southern Anatolia in modern day Turkey. अब ये टर्की का तीसरा एग्जाम्पल है कि हम जितना ज़्यादा प्री हिस्ट्री में जाएंगे हमें उतनी अलग अलग तरीके की सोशल ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी. तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक में आपने देखा कि ये क्वीन की आर्मी लेकर लड़ने पहुँच गए थे. ऐसे ही 9,000-year-old साइट है जो कि मॉडर्न डे टर्की में सिचुएटेड है. इसको ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता है उसकी साइज़ के लिए और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए. सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स और डेटा इस तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि जेंडर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था लोगों को कि लोग कैसे जीते थे. पीपल वर नॉट वरिड अबाउट वेदर दे वर मेन और दे वर वेमेन. most sites that archaeologists dig, you find them men and women because they have different lives, they have different food and they end up with different diets. According to archaeologist Ian Hodder at Stanford. But at Catalhoyuk you don't see that at all. Analysis of human remains suggests that men and women had identical diets, spent around the same time indoors and outdoors, did similar kinds of work. In fact, the height difference between the sexes was very slight. तो कैटलहोयूक एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दुनिया की सबसे पुरानी सिटी है जो कि जेंडर बायस्ड नहीं थी, जहाँ पे एक जैसा खाना खाते थे, दोनों साथ में काम करते थे, एक जैसे काम करते थे, इंडोर आउटडोर स्पेंड करने का टाइम बराबर था, हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, डिवीजन ही नहीं था आपस में. विमेन इनविजिबल नहीं थी कि मर्द ही मर्द दिख रहे हैं, औरतें दिख ही नहीं रही हैं. Women were not invisible. Excavation of this and other sites dating to around the same time have unearthed an abundance of female figurines. जब खुदाई हुई तो खूब सारे फीमेल फिगरिंग्स निकले हैं ज़मीन में से, और वो सारे के सारे अब लोकल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स के कैबिनेट्स में आपको सजे हुए मिल जाएंगे. तो जब आप टर्की जाएं तो आप ये देखें
इसमें सबसे फेमस है सीटेड वुमन ऑफ कैटल होयुग, जिसका पिक्चर स्लाइड फर्स्ट पे था, मैं वापस वहाँ जाऊँगी, जो कि म्यूजियम ऑफ एनाटोलियन सिविलाइजेशंस इन अंकारा पर सिचुएटेड है। तो अब अंकारा जाएं तो आप ये देखें, इसमें एक बंदी बैठी हुई है सिटिंग अपराइट, उसकी बॉडी एज की वजह से थोड़ी सी झुकी हुई है, डीपली इंडेंटेड है, और भर भर के फैट के रोज स्पिल आउट कर रहे हैं बॉडी से। शी इज़ अ फैट वुमन, और उसके बाहों के नीचे बैठे हैं दो बिल्लियाँ जो कि एक्चुअली लेपर्ड्स जैसी दिखती हैं, और वो सीधा देख रही है जैसे कि उसने उन दोनों को पाल रखा हो। आप एक बार इन विमेन के दर्शन कर लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ कि बॉडी शेमिंग का ज़माना नहीं था तब, और एक फ़ैट वुमन को पावरफुल वुमन की तरह डेपिक्ट किया गया है आज से हज़ारों साल पहले। दिस इज़ आई थिंक वंडरफुल। ऋषिकेश हम ढूंढ लेते हैं, ढूंढने से तो ईश्वर मिल जाता है, हम तो पैसेज ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हाँ मुझे टर्की आना है, मुझे तो अर्थक्वेक ने रोक लिया, वरना मैं अभी टर्की में ही होती, हॉलीडे कर रही होती। ठीक है, so yeah, she was a ruler in Cattle Hoyuk, and this is how she looked, fat and pretty. Okay, as we know, the relatively gender blind way of life at Cattle Hoyuk did not continue forever. अब अगर ऐसा होता तो आज भी वहाँ ऐसा हो रहा होता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ज़िंदगी भर तो ये चला नहीं। Over thousands of years, social hierarchies gradually crept into this broader region. Crept is the past tense of creep, मतलब धीरे से घुसी चली आई, जो कि आज के मॉडर्न डे यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है। Thousands of years later, in cities like ancient Athens, earlier cultures had developed around misogynistic myths that women were weak, not to be trusted, and best confined to the home. तो अगर आप देखेंगे हज़ारों साल बाद हम ऐसे विमेन रूलर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, है ना। इस फिगर की बंदी की तो लोग बस बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पर और दुनिया में जनरली भी, बट फिलहाल हज़ारों सालों बाद हम एंशिएंट एथेंस जैसी बहुत सारी सिटीज़ में देखते हैं दुनिया में अलग अलग कल्चर्स बन गए हैं जो मिसोजिनिस्टिक हैं, यानी विमेन को नफ़रत करते हैं, और उनमें अजीब सी मिथ्स हैं कि विमेन कमज़ोर हैं, विमेन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और विमेन बेस्ट होती हैं जब वो घर पर रहती हैं। सवाल ये है कि ये हुआ क्यों, कहाँ हम दो लेपर्ड्स को संभालने वाली बंदी, सॉलिड बंदी से हम एक ऐसे कल्चर में आ गए जहाँ पर विमेन वीक और नॉट ट्रस्टवर्दी हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एंड फिलोसोफर्स हैव आस्क्ड वेदर एग्रीकल्चर कुड हैव बीन द टिपिंग पॉइंट। मैं आपको ये आरसी में पढ़ा चुकी हूँ कि एग्रीकल्चर के ऊपर एक थ्योरी बेस्ड है कि एग्रीकल्चर की वजह से पेट्रियार्की स्टार्ट हुई। तो देखते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है। ये कहता है कि वेदर एग्रीकल्चर कुड हैव बीन द टिपिंग पॉइंट इन द पावर बैलेंस बिटवीन मेन एंड विमेन। Agriculture needs a lot of physical strength. The dawn of farming was also when humans started to keep property such as cattle. As this theory goes, social elites emerged as some people built up more property than others, driving men to want to make sure their wealth would pass on to their legitimate children, so they began to restrict women's sexual freedom. इसको समझ लेते हैं। ये वाली थ्योरी कहती है कि जब एग्रीकल्चर आया तो एग्रीकल्चर में चाहिए थी फिजिकल स्ट्रेंथ, और एग्रीकल्चर के साथ लोग पालने लगे बड़े बड़े जानवर जैसे काउस, बुलक्स, ऑक्सन एट्सेट्रा। जब जानवर पालने लगे और जानवर प्रॉपर्टी बन गए, आज भी जानवर प्रॉपर्टी होते हैं। अगर आपका डेयरी फार्म है, आपके 5-7 गायें हैं, तो आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। गाँव में आज भी लोग गाय, भैंस, बकरा गिनते हैं, पोल्ट्री फार्म है तो मुर्गे गिनते हैं। बट एनीवे, तो फिजिकल स्ट्रेंथ, एग्रीकल्चर और कैटल और प्रॉपर्टी ये साथ में जा रहा था, दे वेंट हैंड इन हैंड। तो सोशल एलिट्स बन गए क्योंकि किसी के पास ज़्यादा जानवर थे, किसी के पास ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ थी। जब ज़्यादा जानवर थे तो फिर लोगों ने बोला अब हमारे पास इतने जानवर हैं, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी, हम किसके लिए छोड़ के जाएंगे, हम अपने लड़कों के लिए छोड़ कर जाएंगे, लेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए। अब अगर आपको लेजिटिमेट चिल्ड्रन चाहिए तो आप ओपन रिलेशनशिप्स नहीं रख सकते जहाँ पे पता ही नहीं है कि किसका बच्चा किससे पैदा हुआ, जैसा ट्राइब्स में होता है। वहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती है, वहाँ पर सेक्सुअल फ्रीडम रहती है। लेकिन क्योंकि अब हमारे को लेजिटिमेट चिल्ड्रन चाहिए थे, तो इसका मतलब एक पार्टनर का एक पार्टनर ही हो सकता है। मोनोगमी की शुरुआत हुई। तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर और मोनोगमी की शुरुआत साथ साथ हुई है, क्योंकि मैन ने कहा कि अभी वुमेन सेक्सुअली फ्री नहीं है, यू विल हैव टू हैव वन पार्टनर थ्रू आउट योर लाइफ। द प्रॉब्लम विज दिट इज, इस थ्योरी के साथ ऑथर कहती है कि प्रॉब्लम क्या है, विमेन ने तो हमेशा एग्रीकल्चर काम करा, आज भी खेतों में आपको विमेन दिखेंगी, आसाम के बागानों में चाय चुनने के लिए आपको सबसे ज़्यादा विमेन दिखेंगी, लेबरर्स में भी आपको विमेन दिखेंगी। तो विमेन ने तो हमेशा एग्रीकल्चर वर्क करा है। इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर फॉर एग्जाम्पल देर आर डिपिक्शंस ऑफ विमेन
रीपिंग कॉर्न एंड स्टोरीज ऑफ यंग वुमेन वर्किंग एज शेफर्ड्स। तो आप पुराना एंशियंट ग्रीक कल्चर पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, तो आप देखेंगे मकई उगाते हुए, शेफर्ड का काम करते हुए आपको औरतों की फ़ोटोज़ मिलेंगी। इसका मतलब उस ज़माने में भी औरतें फिजिकल लेबर कर रही थी और ऐसा होता था। तो एग्रीकल्चर वाली जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है। United Nations data shows that even today, women comprise half the world's agricultural workforce and nearly half of the world's small-scale livestock managers in low-income countries. आपके घर पे भाई आती होगी, भैया कम आते होंगे, बहुत कम लोगों के यहाँ मेल सर्वेंट्स होते हैं, फीमेल सर्वेंट्स ज़्यादा होती हैं। लो इनकम कंट्रीज़ में विमेन फिजिकल लेबर उतना ही कर रही है जितना मेल्स कर रहे हैं। मेल शायद बाहर करते होंगे, ठेला लगा लेते हैं, या मजदूरी कर लेते हैं। फीमेल्स भी मजदूरी करती हैं, ठेला कम लगाती है, लेकिन घर घर जाके काम ज़्यादा करती हैं। तो स्मॉल स्केल लाइफ स्टॉक में भी औरतों की संख्या ज़्यादा है, एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स में भी आधी बंदियाँ हैं। तो वर्किंग क्लास विमेन और एनस्लेव्ड विमेन हैव ऑलवेज डन मैनुअल लेबर। तो चाहे वर्किंग क्लास हो, चाहे आपने स्लेव बना के रखा हो, औरतों ने हमेशा हैवी मैनुअल लेबर करा है। इसका मतलब ये वाली थ्योरी खारिज हो जाती है कि एग्रीकल्चर की वजह से पेट्रियार्की की शुरुआत हुई। इतना क्लियर है? तो ये वाली बात उस आरसी में नहीं थी, ये बात अभी लेटेस्ट आर्टिकल में आई है। More importantly, for the story of patriarchy, there was plant and animal domestication for a long time before the historical record shows obvious evidence of oppression based on gender. तो स्टोरी पेट्रियार्की की स्टोरी के लिए प्लांट और एनिमल डोमेस्टिकेशन बहुत पहले आया था और ये बहुत ऑब्वियस एविडेंस है कि जेंडर ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ। The old idea that as soon as you get farming you get property, when you get property you get control of women as property is wrong, clearly रॉन्ग। टाइमलाइन मैच नहीं होती है। तो हम कहते हैं फार्मिंग से आई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से आया कंट्रोल ऑफ वुमेन, लेकिन इन दोनों की टाइमलाइन मैच नहीं करती है क्योंकि प्लांट और एनिमल डोमेस्टिकेशन बहुत पहले से चला आ रहा है। वुमेन का पेट्रियार्की के हाथों सफ़र करना बहुत बाद में आया है। द फर्स्ट क्लियर साइंस ऑफ वुमेन बीइंग ट्रीटेड कैटेगोरिकली डिफरेंटली फ्रॉम मेन अपीयर मच लेटर। तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पर मर्दों में और औरतों में कैटेगोरिकल डिफरेंस है और दोनों को बिल्कुल अलग अलग ट्रीट किया जाता है, ये हमें बहुत बाद में देखने को मिलते हैं। ये हमें देखने को मिलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के आसपास के इलाके में, जिसको आज आप इराक, सीरिया और टर्की कहते हैं। 5000 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टैबलेट्स मिली हैं सुमेरिया की। आपने सुमेरिया का नाम सुना होगा राइटिंग के एडवेंट के साथ, आरसीज में को बहुत आता है। तो सिविलाइजेशन और राइटिंग की जब बात होती है तो सुमेरिया का जिक्र ज़रूर होता है। तो टैबलेट्स पे लिखा जाना लगा था सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के कामों के लिए। तो सदर्न मेसोपोटामिया में जो टैबलेट्स हमें मिली थी उसमें आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो इंचार्ज थे वो खूब मेहनत कर डिटेल लिस्ट बनाते थे पॉपुलेशन की, रिसोर्सेज की, टैक्सेस की, पैसों की, हिसाब किताब की। तो ये बहुत पुराना है और ये तब से चला आ रहा है। ठीक है। Person power is the key to power in general, explains political scientist and anthropologist James Scott at Yale University, whose research has focused on early agrarian states. The elites in these early societies needed people to be available to produce a surplus of resources for them and to be available to defend the state, even if to give up their lives if needed in times of war. नया theory ये कहता है कि देखो पर्सन पावर से पावर आता है। ठीक है। जो एलिट्स होते हैं अर्ली सोसाइटी के, वो कहते थे कि हमको खूब सारे रिसोर्सेज चाहिए और उनका सरप्लस चाहिए, उसके लिए बंदे चाहिए क्या, और ऐसे भी लोग चाहिए जो स्टेट को डिफेंड करें, भले ही अपनी जान देनी पड़ जाए। ऐसा कब होता है? वॉर के टाइम में होता है। जब वॉर के टाइम में बंदे मर रहे हैं तो पॉपुलेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए फैमिली पे इनएविटेबल प्रेशर आ जाएगा कि बच्चे पैदा करो, लड़के पैदा करो और हमको दो, क्योंकि हमारे को लड़के चाहिए वॉर लड़ने के लिए। Over time, young women were expected to focus on having more and more babies, especially sons who grow up and fight. सबको लड़का चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़का ही है जो वॉर पे जाएगा। लड़का वॉर पे जाएगा, लड़का देगा कौन? लड़कियां देंगी। तो यंग वुमेन पे प्रेशर था और आज तक है कि आप बेटा पैदा करके दीजिए। अभी कोई जंग नहीं लड़नी है, बट उसके बावजूद अभी सोशल मीडिया पे जंग लड़ते हैं, हम टेलीग्राम ग्रुप्स पे जंग लड़ते हैं, तो अभी उसके लिए लड़का चाहिए। तो लड़का चाहिए वाली जो मेंटालिटी वो कहाँ से आई थी? वॉर के लिए आई थी कि भाई लड़ने के लिए बंदा चाहिए तो बंदा पैदा करो। तो यंग विमेन को बोला गया कि तुम सब काम छोड़ो, तुम हमें बच्चे ला के दो। तो यहाँ से पावर शिफ्ट शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टेट वॉज दैट एवरीबडी प्लेड देयर पार्ट अकॉर्डिंग टू हाउ दे हैड बीन कैटेगराइज मेल और फीमेल। यहाँ से शुरुआत हुई कि बच्चा पैदा करने का काम फीमेल का है तो वही कर सकती है, तो फीमेल का काम करेगी और मेल का काम करेगा। इसके पहले हम जेंडर ब्लाइंड थे, हम सब मिलजुल के सब काम वाम कर रहे थे, लेकिन यहाँ से हमने डिसाइड करा दैट विमेन आर मोर अप्रोप्रिएट
to give birth rather than do something else, because we need more babies, that too baby boys. इंडिविजुअल टैलेंट की कोई कदर नहीं, नीड की कोई कदर नहीं, और डिज़ायर की तो सवाल ही नहीं, आज भी कदर नहीं है. अ यंग मैन who did not want to go to war was a failure and was mocked at. A young woman who did not want to have children or was not motherly was unnatural. आज भी ऐसा ही है. If you are a woman and you don't want to have a child, you are less of a woman. If you are a man and you don't want to make money and you want to be a house husband, you are less of a man. इसी का मॉडर्न वर्जन आपको आज देखने को मिलता है. पहले वॉर के लिए था, आजकल घर चलाने के लिए है. तो इसका नुकसान दोनों जेंडर्स को हुआ है, सिर्फ एक जेंडर को नहीं हुआ है. As documented by the American historian Gerda Lerner, written records from that time show women gradually disappearing from the public world of work and leadership and being pushed into the domestic shadows to focus on motherhood and domestic labor. तो यहाँ से हिस्ट्री कहती है कि रिटन रिकॉर्ड्स हमको दिखाते हैं कि धीरे धीरे रिटन रिकॉर्ड्स से, पब्लिक वर्ल्ड से, लीडरशिप से, काम से औरतों का नाम गायब होना शुरू हो गया. उनको बोला गया डोमेस्टिक रहो, घर पर बैठो, मदरहुड को एम्ब्रेस करो और डोमेस्टिक लेबर को एम्ब्रेस करो. घर पे झाड़ू पोछा, घर का कूड़ा, रोटी बनाओ, बच्चे पैदा करो, ये हो गया. दिस कंबाइंड विद द प्रैक्टिस ऑफ पेट्री लोकल मैरिज. नया कॉन्सेप्ट निकला, पेट्री लोकल मैरिज. पेट्र मतलब पिताजी. पेट्री लोकल मैरिज का मतलब है कि डॉटर से बोला जाता है कि बाबुल का आंगन छोड़कर पिया का आंगन गले लगाओ. लिव योर चाइल्डहुड होम एंड लिव विद योर हस्बैंड. इससे औरतें और अपनी फैमिली से अलग हो गई, तो आपने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया, उन्हें मार्जिनलाइज कर लिया, फिर उनको वल्नरेबल बना दिया एक्सप्लॉयटेशन के लिए, और वो अपने ही सो कॉल्ड घरों में या ससुरालों में अब्यूज़ होने लगी. ओवर टाइम मैरिज टर्न इनटू अ रिजिड लीगल इंस्टीट्यूशन, जैसा आज भी है. तो आज भी यही हो रहा है, और आज एक रिजिड लीगल इंस्टीट्यूशन है मैरिज. विमेन वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड्स एज व चिल्ड्रन एंड स्लेव्स. तो बच्चे हो, स्लेव्स हो या विमेन हो, तीनों को बराबर तरीके से प्रॉपर्टी माना जाता था मेन की. सो मेन वर ऊपर, विमेन, चिल्ड्रन एंड स्लेव्स वर नीचे. Rather than beginning in the family, then history points instead to patriarchy beginning with those in power in the first states. तो फिर हिस्ट्री कहती है कि पेट्रियार्की की शुरुआत हुई तब जब लोगों के पास थोड़ा सा पावर आ गया. टॉप की डिमांड की वजह से नीचे फैमिली में फिल्टर होकर डिमांड आने लगी, जिसने रप्चर्स बना दिए मोस्ट बेसिक ह्यूमन रिलेशनशिप्स में. यहाँ तक कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच का रिश्ता भी अच्छा नहीं रहा. सो डिमांड्स फ्रॉम द टॉप फिल्टर्ड डाउन इनटू द फैमिली. They forced ruptures, मतलब breakages in the most basic human relationships, and there was a conflict even between parents and children. It sowed distrust between those whom people might otherwise turn to for love or support. तो पहले हम सोचते थे शादी करेंगे, खुश रहेंगे, हमको हमारा बंदा खुश रखेगा, बंदी हमको खुश रखेगी, मम्मी पापा हमको खुश रखेंगे, बच्चे हमको खुश रखेंगे. हम वहाँ पर लव और सपोर्ट ढूंढते थे. आजकल हम डरते हैं कि हमारे साथ मिसयूज़ तो नहीं होगा, हमारा अब्यूज़ तो नहीं होगा, हमारा काट तो नहीं लेंगे आपकी भाषा में. तो ये सैड है कि जिन लोगों से हमें लव और सपोर्ट की उम्मीद रहती है, उनको हम मिसट्रस्टिंग निगाहों से देखते हैं. नो लॉन्गर वर पीपल लिविंग फॉर देमसेल्व्स एंड दोज क्लोजेस्ट टू देम. तो अब हमने अपने लिए और अपने अजीज़ लोगों के लिए जीना बंद कर दिया. हम जीने लगे पेट्रियार्कल स्टेट के इंटरेस्ट के लिए, सोसाइटी के सो कॉल्ड रूल्स को फुलफिल करने के लिए. A preference for sons is still a feature of traditionally patriarchal countries today, including India and China. मैं सैड हूँ कि हमारा नाम यहाँ पर टॉप पे लिखा गया है. Where the bias has led to such high rates of female feticide. इतना अबॉर्शन होता है इलीगली छुप कर, अगर फीमेल चाइल्ड होती है तो. नेचुरली फीमेल बर्थ्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट हमारा जो सेक्स रेशियो है वो बताता है कि हम इतने स्क्रूड हैं कि हमारे यहाँ फीमेल्स कम है, मेल्स ज़्यादा हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी लड़कियों को मार दिया जाता है पैदा होने से पहले. सेक्स रेशियोज कम्प्लीटली स्कूड हैं. 2011 का सेंसस दिखाता है कि इंडिया में 100 लड़कियां हैं 111 बॉयज़ के लिए, और डेटा सजेस्ट करता है कि शायद चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं क्योंकि धीरे धीरे सोशल नॉर्म्स बदल रहे हैं और लोग बेटियां चाहने लगे हैं. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन विद इन पेट्रियार्कल मैरिजेस कंटिन्यूज. ये अर्बन, रूरल, पढ़ा लिखा हर किसी तरीके का व्यक्ति ये देखता है कि ये कॉमन है. फोर्स्ड मैरिज, द मोस्ट एक्सट्रीम वर्जन, वॉज डेजिग्नेटेड अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी. ज़बरदस्ती की शादी कराने को मॉडर्न डे स्लेवरी कहा गया है. ये जो डेटा यहाँ दिया है मैं इससे अग्री नहीं करती. ये सिर्फ कहता है कि 22 मिलियन लोग ऐसे हैं ग्लोबली जो फोर्स्ड मैरिजेस में रहते हैं. मुझे लगता है कि ये गलत डेटा है, क्योंकि 22 मिलियन इज नॉट मच, इट्स जस्ट 220 lakhs. And I don't believe in this. I think there are a lot many more people
who live in unhappy forced marriages and never accept it outside to the society, to their family, to their parents, to their children, and they just keep on dragging their marriages all their lives. And it's very difficult in a country like ours to break the shackles of a marriage which was forced upon you. So I don't believe in this data, but yeah, this is the data that 22 million people globally lived in forced marriages, and it is akin to modern day slavery. The last psychological damage of the patriarchal state was to make its gendered order appear normal, even natural, in the same way that class and racial operation have historically been framed as natural by those in power. जब powerful लोग classes को lower, upper, middle को natural बता सकते हैं, racial oppression को natural बता सकते हैं कि whites are superior to blacks and browns, तो फिर हम gender में भी इस बात को naturally believe करने लगे that men are stronger and better than women. ये सब कुछ natural दिखाया जाने लगा. Those social norms today become gender stereotypes, including the idea that women are universally caring and nurturing and men are naturally violent and suited to war. हम सारे मर्दों को समझते हैं कि violent हैं, उन्हें रोना नहीं आता, उनमें feelings नहीं होती, वो war में जाने के लिए बने हैं, उनमें ज़्यादा sexual drive होती है, और women में drive होती ही नहीं है, women बस caring और nurturing के लिए बनी हैं, वो सब automatically mothers बनने लायक हैं, इसीलिए इतनी lousy mothers दुनिया में exist करती हैं. तो ये gender stereotypes हैं जो आज भी exist करते हैं. By deliberately confining people to narrow gender roles, patriarchy disadvantage not just women but also many men. There are many men who are better nurturers and caretakers than women. There are many women who are more ambitious and more violent and more aggressive than men, and I know a lot of examples in my life like that. But because of these gender roles, both the genders suffer. It is important okay, I like to read what you guys are writing, but yeah, I don't have the time for all of that. Its intention was only ever to serve those at the very top, which is society's elites. ठीक. Like Monkey Hill at London Zoo in the 1920s, then this is a warped system, one that has fostered distrust and abuse. तो Monkey Hill की तरह हमारा system भी distrust और abuse को encourage करता है. Movements for gender equality across the world are symptoms of the social tensions humans have been living with in patriarchal societies for centuries. तो अभी जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, ये दिखाता है कि दोनों जेंडर्स में कितना टेंशन है, और पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में हम मल्टीपल सेंचुरीज से रहते आ रहे हैं, राइट. और एज द पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एन फिलिप्स हैज़ रिटन, अगर किसी को थोड़ा सा भी चांस दिया जाए तो लोग इक्वालिटी और जस्टिस को चुनेंगे ओवर इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस. As daunting यानी as scary as the struggle against patriarchy may feel at times, there is nothing in our nature that says we can't live indifferently. कितना ही पुरुष प्रधान समाज हो, आप चाहें तो चीज़ें बदल सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है आपके नेचर में जो आपको कम वायलेंट नहीं बना सकता, जो आपको आपके आसपास की औरतों को इनकरेज करने से रोकता हो, जिसकी वजह से आप अपनी बंदी के लिए लड़ने से पीछे हट जाएं, या आप अपने बंदे को रोने के लिए सेफ स्पेस दे सकें. अ सोसाइटी मेड बाय ह्यूमंस कैन ऑल्सो बी रीमेड बाय ह्यूमंस. आपने फालतू की चीज़ें खड़ी करी, यानी ह्यूमंस ने फालतू की चीज़ें खड़ी करी, तो इनको डिमोलिश करने का काम भी आपका खुद का है, आपका खुद का काम है, इसीलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जेंडर रोल्स के खिलाफ लड़ना पड़ेगा. सैड बात यह है कि तुम लोग इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के नैरेटिव से ज़्यादा ड्रिवन हो बजाय व्हाट रियली हैपन्स अराउंड यू. सो आई वुड से दैट ऑब्जर्व द पीपल अराउंड यू in your house, amongst your servants and maids, in the labor class. Peep into people's houses a little, see what is going on around you, and worry less about what is happening from the sobo girls and sodai girls on Instagram. Stop worrying about reels. Basically, get real, forget reel. I want you to consider these beautiful things again, and worry, not worry, but ponder upon these question pockets. तो ऐसे आर्टिकल में क्वेश्चन पॉकेट क्या क्या हो सकते हैं. क्वेश्चन आ सकता है मेन आइडिया के ऊपर, क्वेश्चन आ सकता है ऑथर का स्टांस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, ऑथर कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करता है, ऑथर ने कैटल होयू का एग्जाम्पल क्यों दिया है, तो कंटेक्चुअल यूसेज क्वेश्चन बन सकता है. ऑथर की टोन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऑथर ने किस बात से अग्री और डिसअग्री करा है, किस हाइपोथेसिस के साथ, उस पर क्वेश्चन आ सकता है. इसके ऑप्शंस को बनाना भी डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग है. आई हैवंट स्पेंट दैट काइंड ऑफ टाइम बिकॉज इट रियली डजंट सर्व दैट पर्पस. But I hope that you've understood the article, and whenever you read articles, non-fictional articles like this, always try to wonder, sit back for 2 minutes and sit back and decide कि इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जैक्टली ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और अगर आता तो मुझे क्या लिखना था.
जब आप ऐसे सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आपको आरसीज में दिखने लगेगा पढ़ते वक्त कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और वो जब दिखने लगेगा तो आप बेहतर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और जल्दी सॉल्व कर पाओगे, आप क्लूलेस नहीं रहोगे जब आप क्वेश्चंस पे जाओगे। तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी सीखनी चाहिए। बाकी पेट्रियार्की और फेमिनिज्म के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, आपको खुद ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपके आसपास का माहौल क्या है। The article source is How Did Patriarchy Actually Begin by Angela Saini, who's a BBC, who's a writer at BBC. This is from her essay, The Patriarchs. That's all from me today. I shall see you in a while in the RC genres class. Today I'm going to discuss 3 important issues: Brexit, which is slightly outdated but relevant; Israel-Palestine issue, which is also relevant; and the Sudan conflict of 2023, which is pretty fresh and relevant. So we are going to do those 3 current affair topics today in the 7:30 class, and you can join me irrespective of any backlogs, and I hope that you have a good time with me. I will see you very soon at 7:30 if all stays well. Till then, take good care of yourselves, keep smiling and keep supporting the people around you irrespective of the agenda.